let us recap whatever we have done in the previous class. Okay, we are doing chapter straight lines, right? Remember? Wherever you feel that you do not understand something, please ask. Okay. I taught you slope of a line M is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 comma y1 and x2 comma y2 are 2 points on the line. Okay. Second thing that we learned, two lines are said to be parallel. Two lines are said to be parallel if their slopes are also equal, that is m1 equal to m2. Okay, बिल्कुल ठीक है ना? And the third thing that we learned was that two lines are perpendicular to each other if two lines are perpendicular to each other if, कोई बताएगा what is the condition? M1 M2 is negative 1. Very good. M1 M2 equal to negative 1. These were the three things that I had taught you. Okay. Let us do couple of illustrations to support these. Let's do a question. Find the slope of the line passing through the points 3, minus 2 and 7, minus 2. Okay. So can you help me find the slope of the line? Slope of the line? 0. So slope of the line would be given by m, which is negative 2 upon 7 minus 3, which is 0 upon 4 and 0. Correct? Now a line whose slope is 0, how would you interpret? उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? दक्ष आप बताइए, जिस लाइन का स्लोप 0 हो उसका क्या मीनिंग है? पैरेलल टू व्हाट? आप बताओ. 1090 तो sin 90 upon cos 90 होता है, which is undefined. Yes. Any line parallel to x-axis. Absolutely correct. Question है, अगर कोई लाइन parallel to y-axis होगी, हाँ. that means कि x2 minus x1 is equal to 0. हाँ, तो तभी तो बोल रहे हैं undefined हो जाएगा. 90 डिग्री है ना, तो 1090. Line does exist, indeed exists. Line indeed exists. Let me just tell you. Suppose ये मेरा एक्सिस है. ओके, आप यही चीजें सीखने की हैं. देखो, ये डिस्कशन से काफी कुछ सीख सकते हो आप. सपोज मैं ये कहता हूं कि ये मेरी लाइन है, राइट? हमने स्लोप को डेफिनेशन क्या दी थी? स्लोप इज डिफाइंड एज द टेंजेंट
okay, with positive x-axis of the angle that is making angle with the positive x-axis, right? यही definition थी. तो जो लाइन पैरेलल है तो उसको क्या कहोगे आप? उसका स्लोप क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी जो लाइन पैरेलल है? कैसे 90 है ये एक्स एक्सिस के साथ? जीरो, सिंपली जीरो, बिकॉज पैरेलल है. समझे? बात समझ में आ रही है? सो ऑल सच लाइंस विल हैव देयर टेंजेंट एज जीरो, पैरेलल लाइंस. तो ये ध्यान रखिएगा. And all the lines which are perpendicular to x-axis will have their slope as undefined, because tan 90 is sin 90 upon cos 90 1 upon 0. All right, clear? तो ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ आना चाहिए. All right. Okay, let us just go ahead with the one more. Is this concept clear by the way, now that I have explained you? अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग. ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. Let us once again draw our x-axis and y-axis. ध्यान से सुनते जाना. ओके, x, x dash, y, y dash. Now let me draw two lines. कैसे ड्रॉ करें? एक तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है? और दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको ले लेते हैं हम थीटा. ओके, एक और एंगल होगा दोनों लाइनों के बीच में, वो ये वाला होगा, इसको क्या देते हैं? फाई. ओके, एग्रीड. और इनके नाम लिख देते हैं L1 L2. L1 तो ऐसे हो गया एंड L2 हो गया ऐसे. ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें थीटा एज वेल एज फाई, ये दो चीजें निकालनी. ऑल राइट, दोनों लाइनों के जो करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल हैं, इनका क्या लिखें? चलो लिख लेते हैं. इसको अल्फा 2 लिख लेते हैं और इसे अल्फा 1 लिख लेते हैं. क्लियर और नॉट? नाउ कैन वी एस्टैब्लिश a relationship between theta alpha 1 and alpha 2? This will be theta vertically opposite angle. Yes or no? ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रहा हूं. थीटा, so we can say alpha 2 would be theta plus alpha 2 alpha 1. Okay, alpha 1 because your exterior angle property, right? Or I can write alpha 2 minus alpha 1 will be theta. ये मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हो तो कभी कभी तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे अब मान लो मैं इसका क्या लूँ? मान लो मैं टेन थीटा ले लेता हूँ. सो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. अब तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, जरा बता दो. टेन, वेरी गुड, टेन अल्फा 1 अल्फा 1 टेन अल्फा 2. करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है,
Okay, tan theta can be written as m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Yes or no, tell me. Now what exactly is tan phi? Can you notice that theta plus phi is 180? Yes or no? Shall I take you back to the picture? ये देखो, yes, supplementary angles हैं. That means phi would be 180 minus theta, which is negative tan theta. Yes or no? Negative tan theta, which means negative m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. So we need to remember this in mind. In nutshell, we have two cases. One is case 1. If it is positive, then tan theta will be positive and tan phi will be negative. There are two cases now. Case 1, if m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 is positive, okay, then what shall you say? Then tan theta will be positive. Tan theta will be positive and tan phi will be negative. Do you agree? And case 2, if m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 is negative, then tan theta is negative, and tan phi क्या हो जाएगा? वेरी गुड, tan phi पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है, इज पॉजिटिव. ओके, सो क्या सिंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो केसेस हैं, तो कैन वी नोट राइट tan थीटा एज absolute value m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2? Yes or no? So we should conclude this topic that this is my formula. Okay, let me give you a question to attempt. Please do. Absolutely, it's very important. Every step को समझ के ध्यान से उसको करना है, समझना है. नहीं आता है तो क्वेश्चन रेज करो, डिस्कशन करो एंड क्लोज करो. मैटर को ओपन एंडेड मत छोड़ो अपनी स्टडीज में. क्लोज द गैप्स. ठीक है दक्ष? Let me write down the question. The question is, if the angle between two lines is pi upon 4 and slope of one of the lines is is 1 upon 2, find the slope of the other line. Can we try this problem? So you already knew my tan theta is given by the formula absolute value of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, and the data क्या क्या है आपके पास, लिख लो. m1 हाफ है, गिवन है. देन m2 को कुछ भी मान लो, m मान लो. आ गया? 3 आ रहा है.
एब्सोल्यूट वैल्यू है तो दो वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ, दो वैल्यू आनी चाहिए माय डियर, ठीक है कि नहीं। m2 इक्वल टू m एंड थीटा इज पाई बाई 4 ये दिया है, तो वैल्यू रख दो 10 पाई बाई 4 इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस हाफ m। तो ये मॉड्यूलस वैल्यू हो गई। तो एक बार आप इसको पॉजिटिव लिख दो, 1 इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस m बाई 2। तो यहाँ से तुम्हारा m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 m बाई 2 इक्वल टू m माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2 इक्वल टू m बाई 2, यहाँ से तुम्हारी m आ गई 3, ठीक है कि नहीं। और दूसरा केस में क्या करो, क्योंकि एब्सोल्यूट है तो नेगेटिव ले लो। सो 1 इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर लिख लो, और ये m माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस m बाई 2, विच मीन्स 1 प्लस m बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस m। गॉट इट। सो ये आ गया तुम्हारा 3m बाई 2 इक्वल टू नेगेटिव हाफ। ओके, सो m की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 1 बाई 3। तो ये दोनों हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो स्लोप of the other line is 3 or minus 1 upon 3. All right. Got it or not? Tell me. Comfortable? So इस तरह से हमें आना चाहिए कि क्या करना है। Let us do एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करें। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line through, ध्यान से कोशिश करो निकालने की क्वेश्चन को, through the points 8,12 and x, 24. Find the value of x. आपको ऑलरेडी लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, राइट। तो हमने एक का m1 निकालेंगे, दूसरे का m2 निकालेंगे, m1 m2 को -1 रख दोगे, ठीक है कि नहीं। दुर्यान जी कर रहे हैं ना, हाँ शाबाश, वेरी गुड। x के साथ क्या लिखा है, x, 24 जी। लेट अस से m1 क्या आएगा मेरा, 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस -2, करेक्ट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो ये आ जाएगा 2 अपॉन, हाँ करो करो शाबाश। m1 आपका 1/3 आना चाहिए। ओके, चलो इसी m2 क्या है बेटा, x के टर्म में आएगा बच्चा। देखो m2 कैसे निकालोगे, क्योंकि x, 24 था ना, सो 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8। इधर देखो बोर्ड पे देखो, ये होना चाहिए 8,12 था ना पहला पॉइंट, यहाँ लिख लो, देखो 8,12 एंड दूसरा पॉइंट क्या था, x, 24। तो ठीक तो है, y2 माइनस y1, 24 माइनस 12 एंड x माइनस 8।
यहाँ समझ में आ गया अभी? हाँ, अब क्या करो, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, हाँ m2 इक्वल टू -1 है। नहीं बेटा गलत है, कहीं चेक करो, x माइनस 8 इक्वल टू -1, हाँ बिल्कुल। सो ये आ गया तुम्हारा 4 इक्वल टू नेगेटिव x माइनस 8 विच इज माइनस एक्स प्लस 8। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 4 विच इज 4। अब यहाँ पे अपने आप को चेक करो कि कहाँ गलतियां हो रही थी। वॉज इट अ स्टूपिड काइंड ऑफ मिस्टेक? आई एम टेलिंग यू, इफ दोज आर योर मिस्टेक्स दैट मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर श्योर। मान लो कैलकुलेशन में एरर आ रही है बार बार, तो प्रैक्टिस करो फिर उसमें, ठीक है। हायर क्लासेस में डोंट अलाउ योरसेल्फ टू हैव एटलीस्ट दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, राइट? दे शुड बी अवॉइडेड। होप दिस इज क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं।